Hello students, in this video we are going to discuss about endocrine system. In last video we have discussed about pituitary gland, and now we will discuss all other endocrine glands. So in total if we discuss endocrine system, then we have pituitary gland in head. यहाँ से शुरू करते हैं तो pituitary gland in our brain. Then here we have thyroid gland. Behind the thyroid gland we have 4 parathyroid gland also. यहाँ पर दो मतलब यहाँ पैर में parathyroid glands होते हैं. Then if we go down, then above the stomach we have pancreas, and above the kidney we have adrenal gland. Then we have testes and gonads as our endocrine tissues and glands. That is testes in a case of male, and ovaries in case of a female. In case we also have 2 more glands. One is thymus gland and one is pineal gland. Pineal gland is present here, इधर forehead में होती है. तो एक वो भी है कि जो फीमेल बिंदी लगाती हैं यहाँ पर, that is to control pineal gland. वो pineal gland को control करने के लिए होती है. Anyway, let's discuss thyroid gland, because in last video we have already discussed about pituitary gland. Just have a short recap of pituitary gland. Pituitary gland is located in brain, and it is attached with the hypothalamus with the help of infundibulum. It is divided into 2 parts: adrenal interior region of the pituitary and posterior region. Whenever you are mentioning this particular hormone released from pituitary, you have to mention whether it is from anterior region or posterior region. Anterior region say we have FSH hormone, we have TSH hormone, that is thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin hormone, and growth hormone, and I think posterior part से हमारे पास में there are 2 hormones. One is oxytocin and one is ADH hormone. Intermediate लोब बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही नैरो होता है, वहां से कोई हार्मोन नहीं निकलता है. And we have already discussed that it is a master gland. Anyway, I am not going too much in detail in pituitary right now. Second, the disease which we are going to gland which we are going to discuss is thyroid gland. Thyroid gland is presented in the neck region below the larynx. Be particular, be precise for the location. एकदम below और above नहीं लिखना है. मेरा अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है. Below the larynx in neck region on the either side of trachea. So this is the complete answer. On either side of trachea below the larynx region, thyroid gland is present. If we see the shape of the thyroid gland, ये एक butterfly shape में होती है, और जो butterfly के 2 wings होते हैं, it is attached with the help of isthmus. So this region is known as isthmus. Now, what is the function of thyroid gland? Thyroid gland is responsible for basal metabolism. It regulates our basal metabolism. What are the hormones released from the thyroid gland? One is thyroxine and one is calcitonin. Calcitonin is required for the metabolism of calcium, but calcitonin is not in your syllabus, so I am not going to in detail this mode of revision time. We will see later, okay, whenever we have a detailed explanation. Now let's discuss thyroxine hormone. What is the function of thyroxine hormone? It is responsible for basal metabolism. Now what happens if it is in a hyposecretion, and what happens it is in a hypersecretion? In case of hyposecretion, it causes the disease that is called cretinism. What happens in cretinism? Cretinism is the combination of dwarfism plus mental retardation. So आपका साइज भी छोटा होगा, आप ड्वार्फ भी होंगे और मेंटली रिटार्डेड भी होंगे. जनरली ग्रोथ हार्मोन के केस में जो ड्वार्फिज्म होता है उसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, बट इन केस ऑफ क्रेटानिज्म, और याद भी रखिएगा यदि क्रेटानिज्म पूछा गया है तो इफ यू विल मेंशन ओनली ड्वार्फिज्म, गलत है. आपको नेम द फॉलोइंग में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ड्वार्फिज्म प्लस मेंटल रिटार्डेशन है तो कौन सा डिजीज होगा, देन द आंसर इज cretinism. There is no choice at all. Is it clear? Okay. Second, what happens in case of hyposecretion? This is the one of the disease. In case of hyposecretion, there could be a simple goiter.
नो व्हाट इज सिंपल गोइटर, आपका ये गोइटर रीजन में यहाँ पर पूरे में थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, एंड दिस इज इरेगुलर स्वेलिंग। ऐसे नहीं है कि पूरा एकदम से ऐसे करके कुछ है, तो काफी इरेगुलर सा स्वेलिंग होता है। लेकिन सिंपल गोइटर होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में। सेकेंड इज मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा इज अ काइंड ऑफ अ गोइटर बट इट अकर्स इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर मिक्सोडीमा होता है। मिक्सो एडीमा, एडीमा का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ वाटर फ्लूइड। सो वाटर फ्लूइड इज रिटेन बिहाइंड दिस फेस, बिहाइंड दिस आईज, तो ये पोर्शन एकदम फ्लफी हो जाता है ऐसे, ये आंखें बाहर निकल आएंगी, तो दैट इज कॉल्ड मिक्सो एडीमा। करेक्ट। द अनदर डिजीज इज एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। एक्स्ट्रा ऑप्थेलेमिक, आंखों के पीछे गोइटर है, तो दो चीजें होंगी। एक्सोप्थेलेमिक का मतलब वाटर विल रिटेन बिहाइंड द आईज, सो आंखें बाहर निकल आती हैं, एंड गोइटर देयर इज अ इरेगुलर स्वेलिंग इन अ नेक, नेक के अंदर इरेगुलर स्वेलिंग होती है। बिसाइड दैट ये बॉडी वेट को अफेक्ट करते हैं, ठंड लग सकती है हमको, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, तो ऐसे ऐसे कुछ और फैक्टर्स हैं। मैंने आपको मेनली अभी वही फैक्टर्स बताए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें हैं। करेक्ट। नेक्स्ट यदि हम चलते हैं तो हमारा वन सेकेंड बच्चों। सो आई हैव डिस्कस ऑलमोस्ट फंक्शंस ऑफ सिंपल गोइटर। आई हैव डिस्कस स्वेलिंग इन द नेक, क्रेटानिज्म आई हैव डिस्कस, मिक्सोएडिमा में स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड्स, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर आउटवर्ड आईज, आंखें बाहर निकल आती हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारी सांसें रुक जाती हैं, एंड फॉर्म्स अ गोइटर इन द नेक। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ gland which is considered as an endocrine as well as exocrine. Endocrine because it produces hormone, that is insulin, glucagon, and exocrine because it produces enzymes like trypsin, amylase, trypsin and all. यदि हम पेनक्रियास के अंदर यदि हार्मोन की बात करें तो देयर इज अ स्पेसिफिक सेल्स that is called islet of Langerhans. Now islet of Langerhans produce three kind of cells. यहाँ पे तीन तरह के cells होते हैं. One is alpha cells, one is beta cells, and another one is delta cells. Alpha cells produce glucagon, beta cells produce insulin, and delta cells produce somatotropin hormone. Now alpha cell का काम क्या है? Alpha cells will produce glucagon which convert एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. एंड द सेकेंड वन इज दैट इंसुलिन. इंसुलिन ऑल्सो रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी and maintain the glucose level in the body, and it converts extra glucose into glycogen. ठीक है. सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है. ये होगा तो इंसुलिन और ये नहीं निकलते हैं, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है. अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, इन केस ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन. बाकी दोनों का हाइपर आपको डिस्कस नहीं करना है, बट इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा? We are not able to convert glucose into glycogen. Glucose glycogen में convert नहीं होगा, so glucose will accumulate into the blood. If glucose will accumulate into the blood, then the blood become concentrated, and that concentrated blood will supply slowly in different parts. तो यदि आपकी सर्जरी हुई है, ब्लड सप्लाई स्लोली हो रही है, आपकी रिकवरी नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी. यदि आपको कहीं चोट लग गई है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी. रीजन इज कि आपको उसको इम्यूनिटी के लिए WBC चाहिए, आपको WBC की सप्लाई नहीं होगी. ब्लीडिंग हो रही है तो वो होती रहेगी क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होगा. सो बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. आपको एनर्जी लेवल लो लगता है, आपको भूख बहुत लगती है, क्योंकि आप यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. जब आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाएंगी, एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे. ठीक है. यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि वाई वी आर नॉट गिविंग इंसुलिन ओरली, हम उसको इंजेक्ट ही क्यों करते हैं? देयर आर टू रीजन. वन, इंसुलिन इज अ प्रोटीन. इफ यू विल ईट इट तो आपके स्टमक में तो उसको डाइजेस्ट कर देना है, तो वो आपको मिलेगा नहीं, फायदा क्या हुआ? ठीक है. सेकेंड,
इंसुलिन इज अ हार्मोन एंड हार्मोन नीड टू बी पावर डायरेक्टली इनटू ब्लड, तो उसको डायरेक्टली ब्लड में जाना चाहिए था, इसलिए इसका इंजेक्शन लगवाते हैं। कोई ऐसा मुश्किल इंजेक्शन नहीं होता, पेट में लोग अपने आप ही लगा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। एनीवे, सो इंसुलिन का हमने डिस्कस किया। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है और वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पेनक्रियास? पेनक्रियास इज लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दैट स्टमक, इंटीरियर रीजन में, पीछे की तरफ होता है स्टमक के पास में, एंड इट इज अ लीफ शेप्ड। इसका शेप कैसा होता है? लीफ। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, मोरओवर इसका किडनी से कोई लेना देना नहीं है। Adrenal gland is divided into two regions. One is adrenal cortex, one is adrenal medulla. Adrenal cortex से 3 हार्मोन बनते हैं. One is glucocorticoid, which will regulate the metabolism of glucose, carbohydrate, fat, protein. Mineralocorticoid regulate the mechanism of minerals. And androgen hormone, which is a sex hormone, which regulate the sex testosterone in a male. Clear? द एड्रीनल मेड्यूला रीजन, मेड्यूला रीजन से निकलता है आपका एडर्नलिन एंड नॉरएडर्नलिन। एडर्नलिन नॉरएडर्नलिन प्रिपेयर यू फॉर इमरजेंसी, प्रिपेयर फॉर यू फॉर काइंड ऑफ फियर, फाइट और फ्लाइट के लिए। दिस इज नोन एज ट्रिपल एफ हार्मोन ऑल्सो, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। कैसे? कहीं पे आग लगी, आपको डर लगा, आप भागे, अपने लोगों को रेस्क्यू करने का कोशिश किया, तो उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। उस पूरी सिचुएशन के लिए आपको किसने प्रिपेयर किया है? एड्रेनलिन ने। एड्रेनलिन क्या करेगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट ना बढ़े तो डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा तो शेर ने खा जाना है तुमको, तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आपका ग्लूकोज फटाफट ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज आपके पास में अवेलेबल होगा तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। दैट टाइम यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला सॉरी, एड्रेनलिन हार्मोन की प्रेजेंस में। नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स का काम क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमने बताया आपको ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन निकलते हैं और एंड्रोजन। यदि एंड्रोजन का हाइपर सिक्रीशन है, यदि वो बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो फीमेल के अंदर वो प्रॉब्लम कॉज कर देता है। इट कॉज द डिजीज एड्रीनल वेरेलिज्म। Now what happens in adrenal virilizm? फीमेल के अंदर यहाँ पे मॉस्टैक्स हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बियर्ड हो सकती है, ठीक है, बाकी बॉडी हेयर्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं जो कि मेल के कैरेक्टर्स हैं, और मेल के अंदर थोड़े से फेमाइन कैरेक्टर हो सकते हैं, श्रिल वॉइस हो सकती है और थोड़ा सा चाल वाल में प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीजें हो सकती हैं। सो वी हैव डिस्कस थायराइड, वी हैव डिस्कस पेनक्रियास, वी हैव डिस्कस एड्रीनल। सो आई होप we have discussed almost portion. Yes. So हाँ, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम टेस्टिस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज फॉर द formation of sperm. From ovary, the hormone released is progesterone and एस्ट्रोजन हार्मोन प्लस रिलैक्सिन हार्मोन ऑल्सो। प्रोजेस्ट्रोन पी से प्रेगनेंसी। प्रोजेस्ट्रोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डेवलप एट द टाइम ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो वो भी ओवरी से निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन इज टू रिलैक्स द यूट्रस आफ्टर दैट पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन के बाद में बच्चे को रिलैक्स करने के लिए या बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये होता है। नाउ लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको इसको तो एज इट इज बुक से ही शेयर करना चाहूंगी। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ व्हाट हैपेंड इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म? सपोज आपका हाइपोथैलेमस के अंदर रिलीजिंग हार्मोन होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। Thyroid stimulating hormone will activate thyroid gland and thyroid gland will release thyroxine hormone. अब थायरोक्सिन यदि एक्सेस में निकल रहा है, थायराइड एक्सेस में निकलेगा तो वो इनहिबिट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो
वो जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन था हाइपोथैलेमस में वो भी कम सिक्रेट होगा। तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। सो जनरली स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चन आपका जो आता है, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर दे देंगे, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लेंगे कि कौन सा मतलब ग्लैंड है, उसको आइडेंटिफाई करो। फंक्शन एंड लोकेशन, फंक्शन एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली क्वेश्चन जो आता है थायराइड के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, पेनक्रियास के ऊपर चारों के ऊपर हो सकता है, पेनक्रियास के ऊपर भी हो सकता है, पिट्यूटरी के ऊपर भी हो सकता है, वो किसी के ऊपर भी हो सकता है। इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मेन जो है फंक्शंस, लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियास के केस में जो डिजीज होती है वो डायबिटीज मेलाइटस होती है। दो चीजें हैं, डायबिटीज मेलाइटस में यदि ऑन एंड सडन मतलब इंसुलिन शॉक की कंडीशन हो जाए तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसमें डेथ हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडियस में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज मेलाइटस इज टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिडियस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वासोप्रेसिन। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। डायबिटीज इंसिपिडियस के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडियस के अंदर बेसिकली हम वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो जनरली यूरिन जो होता है वो बहुत डाइल्यूट होता है या बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसके अंदर होता है। सो आई होप आई हैव डिस्कस ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट पार्ट आई हैव कवर। इसके अंदर जो रीजनिंग क्वेश्चन थे, एक और रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल हैपन इफ आई विल रिमूव योर एड्रीनल ग्लैंड? If I will remove your adrenal gland, then you can't survive, because adrenal gland prepare you for everything, for trauma, for fasting, for emergency, वो सबके लिए, आपकी हार्ट बीट को, आपके बिहेवियर को, टीयर को, आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस है, काफी सारे बॉडी फंक्शंस को एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है। एक आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी से जो के अंदर जो पेनक्रियास के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस आई हैव, बहुत शॉर्ट मैंने वीडियो कवर किया है क्योंकि अभी टाइम कम है और रिवीजन हमने ज्यादा करना है। पता नहीं पेपर होंगे या नहीं होंगे, बट वी हैव टू प्रिपेयर। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। Still, if you have any doubt, anytime, you people are most welcome to ask question through any of the channel, whatever you feel comfortable. Stay home, stay safe. Thank you.